आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट्स और वित्तीय जरूरतों का ध्यान रखने वाले फाइनेंशियल प्लानर्स। Financial literacy amongst college students is. Learn why making will is important. I'll be talking on nuts and bolts of children's education investment planning. 21 weeks to scale up your skills and learning. Don't retire rich. Are you ready for tomorrow? Do something that your future self will thank you for. आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट्स और वित्तीय जरूरतों का ध्यान रखने वाले फाइनेंशियल प्लानर्स। Financial literacy amongst college students is. Learn why making will is important. I'll be talking on nuts and bolts of children's education investment planning. 21 weeks to scale up your skills and learning. Don't retire rich. Are you ready for tomorrow? Do something that your future self will thank you for. आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट्स और वित्तीय जरूरतों का ध्यान रखने वाले फाइनेंशियल प्लानर्स।
financial literacy amongst college students is Learn why making will is important. I'll be talking on nuts and bolts of children's education investment planning. 21 weeks. Good evening, friends. Today is the beginning of a 21-week journey. And this journey is going to help all of us in scaling up our skills and our learnings. So friends, we really look forward to this journey, with each week coming up with a new experience for all the advisors all across India. It's not only advisors, but also the RIAs, mutual fund distributors, and relationship managers of various mutual funds. And the best part of this whole program is that this is conceptualized by the Volatility Coaches of India. And this is a joint initiative of 27 mutual fund IFA associations of India. I think almost all the IFA associations of India have contributed and put in their best so that we all are here together. And I'm sure that while we pass through this journey, IFA associations will get together more, and we will be doing more for the fraternity so that we all see our clients at a much, much better position in the coming days. Yes, all these weeks will be different, and continue to be there, logged in. And there are a lot of things other than the normal sessions. There will be a lot of polls, there is a lot of questions, and Business Line, Hindu Business Line being our media partner. So we also have subscriptions for over next 6 months, which will be coming to you as in a form of a gift. Now, just let me tell you that what it is all about. All your name is like your lottery, is like your ticket. Okay. So now, while we will be conducting these sessions, there will be some questions which will be coming on your screen. So you need to just participate in those questions. And there is a letter which will be coming at the end of each question. Now that is the letter which you will have to strike off. So the people who will be able to strike off their name, first name, middle name, and the last name, or the first 5 letters, they will be getting this vouchers on their email addresses. So it's full of engagement. Let's all engage, network, and learn from each other through our chat box also, and listen to these speakers. So today we are very, very fortunate that we will be having the session, which will be conducted and hosted and taken through by our chief guest and the guest of honor, Mr. Anil Singhvi. So he is going to take it, and he's a personality which all of us know. He's the managing director of Z Business. And he needs no introduction. Such an amazing and a pleasant personality, and he is full of enthusiasm and the passion which he is having for financial advisors, especially. That is something which is commendable. So, friends, and along with him, we will have an esteemed panel of speakers. And so I will request Mr. Anil Singhvi only to introduce them and take us further in our journey of learning and growing. Thank you very much. Thanks so much, Mr. Kanak Jain. Thanks for inviting me for such a good noble cause. 21 हफ्तों का ये सीखने सिखाने का जो सिलसिला आप आज से शुरू कर रहे हैं, और इससे बढ़िया दिन हो नहीं सकता, टीचर्स डे, जब आप सीखने और सिखाने का ये 21 हफ्तों लंबा प्रोग्राम जो शुरू करने जा रहे हैं, और वो भी देश के सबसे बड़े जो स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल वर्ल्ड के गुरु हैं उनके साथ में। मैं FFF को बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं भी कि ये आपका प्रयास बहुत सक्सेसफुल हो, और उम्मीद में ये करता हूं कि देश में, दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकें और अपनी इस बात को रख सकें। और टीचर्स डे के मौके पर आज 4 ऐसे खास एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं जिनसे मैंने पिछले 25 सालों में बहुत कुछ सीखा है, और आज भी सीखने की कोशिश करता हूं। ये वो 4 लोग हैं जो आपस में मिलके हिंदुस्तान के 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मैनेज करते हैं। जी हाँ, 12 लाख करोड़ रुपीस combined together they have under their belt to invest and look after। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ लोगों के पैसे को
और उन्हें कमा कर देना, ये अपने आप में एक छोटी बात है नहीं। और आज हम इसी पर बातचीत करेंगे कि पैंडेमिक के बाद आगे देश दुनिया का क्या हाल है, इकोनॉमी कैसी है, मार्केट कैसे है। और मार्केट बहुत ही एक्साइटिंग लेवल्स पर है, बहुत ही एक्साइटिंग जगह पर है, इकोनॉमी बहुत एक्साइटिंग मोड पर है। तो आगे क्या कुछ होने वाला है ये जानने की कोशिश हम अगले 1 घंटे में करेंगे। आइए मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं। वैसे तो किसी के भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप उन्हें स्क्रीन पर देखेंगे खुद पहचान जाएंगे और उनके बारे में जानते हैं सुनते हैं हमेशा। लेकिन मेरे ऑल टाइम फेवरेट रामदेव अग्रवाल सर हैं, जो कि जॉइंट एमडी और को फाउंडर हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के, और जिन्हें मैं हिंदुस्तान का वॉरेन बफेट और मैं अपना गुरु भी मानता हूं। रामदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ नवनीत मनोज साहब हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीआईओ। न सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन नवनीत जी से मैं न सिर्फ मार्केट के बारे में सीखता हूँ, बल्कि पर्सनल लाइफ में किस तरह से बैलेंस करके चलें अपनी लाइफ को। और स्पिरिचुअली, देखिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसे ध्यान से सुनिएगा, स्पिरिचुअली आप अपनी लाइफ को काम के साथ किस तरह से बैलेंस करके और बेहतर बना सकते हैं, अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, वो मैं हमेशा नवनीत जी से सीखता हूँ। नवनीत जी भी मेरे गुरु हैं। एस नरेंद्र साहब, जिनके फंड का मैं खुद इन्वेस्टर हूँ और मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के सीआईओ वो हैं, और बहुत ही बेहतरीन इंसान भी हैं, और एक बेहतरीन फंड मैनेजर तो है ही, और बहुत ही अच्छे बॉस भी। महेश पाटिल साहब है, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के सीआईओ, और महेश जी से भी मेरा बहुत पुराना नाता है, और कई चीजें मैं महेश जी से सीखा हूँ। उनके फंड का मैं इन्वेस्टर, वैसे फंड तो मैंने इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि मैं चारों ही हमारे जो यहाँ पर सीआईओज हैं उनके सबके फंड में मेरा इन्वेस्टमेंट है, और आई एम अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टर। बट आज आप सबको जो कुछ भी सीखने को समझने को मिलेगा, उसके साथ साथ एज एन इन्वेस्टर मुझे भी बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टीचर्स डे के मौके पर आप चारों गुरु हैं मेरे लिए भी, और हिंदुस्तान के करोड़ों इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया, और इसी तरह से आगे आने वाले कई सालों तक आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें। रामदेव सर मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेट हो रहे हैं, तब तक मैं एक बार है ना नवनीत जी आपके पास आता हूँ, शुरुआत आपसे करता हूँ। मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है, और हाई के आसपास ही, ज्यादा नहीं, 10% ही दूर है, और नीचे से देखेंगे तो 50% ऊपर है मार्च के लो से, और हमारी जीडीपी ग्रोथ लाइफ टाइम लो पर है। सही क्या है? दोनों में से क्या सही है? दोनों में से एक तो गलत होना चाहिए, सही क्या है? तो जीडीपी, सबसे पहले तो टीचर्स डे की आपको भी बहुत बहुत बधाई अनिल जी। और बहुत अच्छा है कि मेरे भी 3 टीचर और पास में बैठे हैं, हम सब लोग एक दूसरे से सीखते हैं। और सबसे बड़ा टीचर तो हमारे लिए मार्केट है। जब भी ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ सीख गए, अब कुछ बहुत आगे है, उसी साल कुछ ऐसा होता है जब आपको पता चलता है कि अभी भी आप स्टूडेंट ही है, टीचर नहीं बने हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। पर मार्केट में एक, जब मार्च अप्रैल में मार्केट गिरा तो एक भय का माहौल था, एक अनिश्चितता का माहौल था। उस समय आपको पता नहीं था आगे इकोनॉमी का, हेल्थ क्राइसिस का, इस सब सिचुएशन का क्या होगा। पॉलिसी मेकर्स का रेस्पॉन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्ट्रॉन्ग रहा, पूरे विश्व में भी और भारत में भी। जिस तरह की मनी प्रिंटिंग और जिस तरह का फिस्कल स्टिमुलस पूरे विश्व में हुआ, और पर्टिकुलर अगर थोड़ा सा ऊपर भी जाता है तो लेकिन रिजर्व बैंक ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिछले हफ्ते मार्केट को दिया कि बॉन्ड यील्ड्स को हम ऊपर नहीं जाने देंगे, तो उसका भी कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट पर असर होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मार्च अप्रैल में जिस तरह से बाजार नीचे था, उतनी स्थिति खराब नहीं थी। आज वापस मार्केट करीब करीब, जैसा आपने बोला, ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया, लेकिन कुछ अनिश्चितता का माहौल है यूएस इलेक्शंस की वजह से लेकर के, या किस तरह से हेल्थ क्राइसिस और इकोनॉमिक सिचुएशन इवॉल्व होती है, उसको देखकर वॉलेटिलिटी के लिए, घटत बढ़त के लिए, थोड़े से करेक्शन के लिए निवेशकों को तैयार रहना चाहिए। रामदेव सर मेरे गुरु हैं, आपको नमन वंदन। और इसके साथ शुरुआत ये करना चाहता हूँ, सर ये बताएं कि मार्केट को इतनी जल्दी क्यों लाइफ टाइम हाई पर फिर से पहुंचने की, मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब मार्च में लाइफ टाइम लो तो नहीं, बट जो लोज हमने 7500 निफ्टी पर देखे हैं और हम 12400 के हाई पर इतने पहुंचने की जल्दी में कि भाई जैसे कुछ ऐसा मिस हो जाएगा, ये क्यों हो रहा है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
रामदेव सर, क्या आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? आई थिंक उनकी ओके ओके। इस बीच में एक कारण जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, नरेंद्र सर के तब जब तक रामदेव सर का लिंक एकदम चुस्त दुरुस्त हो जाए। नरेंद्र सर, क्या अमेरिका में जो इतनी तेजी हो रही है उसकी वजह क्या है, पहली चीज ये, और क्या उसके दम पर हम सारे लोग, हमारी सारी इकोनॉमी उस पर रिएक्ट करे, ये ठीक है? आप कैसे देख रहे हैं इसको, ग्लोबल मार्केट्स का सिनेरियो, अमेरिका का सिनेरियो और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर? क्योंकि $1 ट्रिलियन, $1,000 बिलियन इतना पैसा मार्केट में फेड ने डाला, $1,000 बिलियन एक मार्केट, एक बड़ा मार्केट में डाला है, तो सब मार्केट ऊपर जाएंगे। और यही हुआ है कि इतना पैसा डाला है और इंटरेस्ट रेट भी 0 कर दिया। और जब हमारा कंट्री में सब लोग है, सबको समझ नहीं पाएगा कि 0% इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि आज भी हमको 5 या 6 या 7% रिटर्न मिलता है डिपॉजिट्स में। इसलिए क्या होता है कि हमको समझ में नहीं आता है कि 0% इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट या प्रॉब्लम्स क्या होता है। वहाँ 0% इंटरेस्ट रेट है, आपके पास जो पैसा है उसमें 0% इंटरेस्ट रेट है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए आप ढूंढोगे कैसा रिटर्न आएगा। उसमें क्या हो गया कि सब लोग के तरह भाग गया। मैं 1987 में IIT मद्रास में पास किया। मेरा 73 क्लास में 40 से 50 लोग यूएस में बैठा है, वो 73 में। वो लोग सब अभी मुझे बोलते हैं कि इक्विटी में ही सुबह से शाम में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं मैं अभी 33 इयर्स इन्वेस्ट सेव किया है, वो 33 इयर्स सेविंग्स में मुझे 0% इंटरेस्ट रेट मिलता है। वो 33 इयर्स का सेविंग्स में 0% इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो सब डिपॉजिट निकाल के सब इक्विटी में ही डालते हैं। इक्विटी में डालेंगे तो क्यों इक्विटी मार्केट भागेगा नहीं। और 0% एक दिन के लिए नहीं बोला है फेड पावेल ने, बोला है कि बहुत दिन के लिए मैं 0% रखूंगा। तो लोग क्या करेंगे, वो इक्विटी में ही डालना पड़ेगा। इसलिए क्या हो गया कि इतना बड़ा तेजी क्रिएट कर दिया कि टेस्ला जैसा स्टॉक जहां रिटर्न बाद में आएगा, वहां भी डालने के लिए लोग सोचने के लिए तैयार है। वही हो गया यूएस में। ऐसा भागने के कारण यूएस फंड मैनेजर्स होता है, यहाँ बहुत महंगा बढ़ गया, इसलिए हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, चाइना में करेंगे, बाकी जगह में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा करते रहते हैं। यही हुआ है। इसलिए यूएस का मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है। वो मार्केट बहुत बड़ा बुल मार्केट हो गया, तो सभी जगह में बुल मार्केट हो जाएगा। यही हो रहा है अभी। एब्सोल्युटली, मतलब जब तक फेड के पास पेपर की कमी नहीं है और ग्रीन इंक उनके पास में है, तब तक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का कोई चांस है नहीं। डॉलर प्रिंट होते रहेंगे, और उन्होंने कहा भी है कि 2% भी पहुंच जाए तब भी हम तो ब्याज दरें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले नहीं है। नरेंद्र सर एंड ऑल ऑफ यू, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। I chose the language which I prefer, which is Hindi, but you can always choose to answer the language you prefer or you are comfortable with. तो आप चाहे तो हिंदी, इंग्लिश, whatever way you are comfortable, please feel free to answer that. मार्केट की बात हुई, महेश सर मैं आपसे ना थोड़ा बिजनेस पे बात करना चाहता हूँ। How the business is being impacted? Because क्या है कि अल्टीमेटली जो भी आप हिंदुस्तान के बाहर लोगों से बात करें, यार बिजनेस बड़ा खराब है, कब तक ठीक होगा पता नहीं। तो इस पैंडेमिक में क्या इम्पैक्ट बिजनेस पर हुआ है और वो इम्पैक्ट कब ठीक होगा, ये मुझे बताएं। जैसे देखा आपने, ये जो पैंडेमिक हुआ है, आई मीन दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट, आई मीन किसी ने देखा नहीं इतना बड़ा इम्पैक्ट बिजनेस पे। आपने देखा है कि फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ जो आई थी इंडिया की -1%, एंड ग्लोबल ग्रोथ भी काफी। तो फुल ईयर clearly we'll see a GDP growth declining by 5 to 6%. So कितने decades में we haven't seen this kind of a upfall in the economy. So clearly pandemic impact काफी ज्यादा मात्रा में है economy में और businesses के ऊपर।
लेकिन इसमें इम्पैक्ट हर एक बिजनेस पे डिफरेंट है. आई मीन हर एक सेक्टर पे, कुछ सेक्टर्स में एक्चुअली बेनिफिट भी हुआ है पैंडेमिक का. लाइक फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर हुआ, जहाँ पे वी हैव सीन दैट एक्चुअली ग्रोथ बढ़ी है सम ऑफ द ड्रग्स, और जो लोग पैंडेमिक के लिए जो दवाइयाँ हैं उसके लिए सप्लाई कर उनकी ग्रोथ बढ़ गई है. टेलीकॉम सेक्टर में वी सीन डेटा दिस थिंग प्राइसिंग वॉल्यूम्स हैव गॉन ऑफ. टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफी कंपनीज जो है वहाँ पे भी लाइक यूएस में वी हैव सीन कंपनीज व्हिच आर ऑनलाइन, उनकी सेल्स काफी हद तक बढ़ी है. बट ज्यादातर कंपनीज और सेक्टर्स को तो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, और उसमें दो तरह के इम्पैक्ट है. एक तो जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग आपने देखा है कि बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एक तो लॉकडाउन हुआ एंड देयर हैज बीन अ सोशल डिस्टेंसिंग व्हिच इज बीन देयर. तो सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ पे बड़ी मात्रा में इम्पैक्ट करती है, वहाँ पे वो सेक्टर्स में इम्पैक्ट काफी देर तक रहेगा, जैसे कि एयरलाइंस इंडस्ट्री है, रिटेल सेक्टर है, मॉल्स है, मूवी थिएटर्स है. वहाँ पे अभी तक लोगों के मन में अभी भी डर रहेगा कि जाके क्राउडेड प्लेसेस में जाएं. तो वहाँ पे काफी भारी मात्रा में इम्पैक्ट हुआ. अभी कुछ जगह पे तो अभी तक बिजनेस चालू भी नहीं हुआ है, जैसे कि मॉल एंड थिएटर्स. दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर. बट दूसरी जो क्षेत्र है जहाँ पे एक तो ग्लोबल लिंक जो सेक्टर्स है, क्या बिकॉज ऑफ द ग्लोबल स्टिमुलस जिस तरह से दी है, एक डिफ्लेशन रैली दिखी, सीन अ बिग डिफ्लेशन बैक वी शेप में दिख रही है. और ग्लोबल जो प्रोडक्शन पीएमआई इंडिकेटर्स है वो ऑलमोस्ट प्री पैंडेमिक लेवल्स के ऊपर आया है. तो मेटल सेक्टर्स जहाँ पे है, कमोडिटी सेक्टर है, वहाँ पे रिबाउंड काफी अच्छी तरह से हुआ है, प्राइसेस भी इम्प्रूव हुई है. हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी कम है, बट प्राइसिंग एनवायरनमेंट इज बेटर, सो दैट सेक्टर इज कमिंग बैक. उसके अलावा ऑटो सेक्टर जहाँ पे इनफैक्ट पैंडेमिक से पहले ही स्लो डाउन चल रही थी. लास्ट 1.5 साल से हमने देखा है कि ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन थी, और पैंडेमिक में लॉकडाउन की वजह से भी एक क्वार्टर लगभग वाइप आउट हुआ था. बट वहाँ पे अभी वापस डिमांड इज कमिंग बैक. स्पेशली अभी लोगों को पर्सनल मोबिलिटी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. पीपल डोंट वांट टू ट्रैवल टू क्राउडेड प्लेसेस, मेट्रो नहीं करने, तो खुद की व्हीकल एक अगर अफोर्ड कर सकते हो, खुद की एक व्हीकल हो, 2 व्हीलर हो या एक लो एंड 4 व्हीलर. तो ऑटो सेक्टर में वी सीन अ गुड डिमांड फॉर 2 व्हीलर एंड फॉर पैसेंजर व्हीकल लो एंड. तो इसी पेंटा डिमांड भी हो सकती है बिकॉज 2 महीने तक तो कंप्लीट लॉकडाउन था. तो वहाँ पर डिमांड इज कमिंग बैक. एंड कंज्यूमर हाई टिकट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो आइटम्स है, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा रिकवरी के लिए. सो दैट सेक्टर विल टेक टाइम. और रूरल सेक्टर इज ऑल्सो डूइंग वेल. आई मीन ये पैंडेमिक है कि टू काइंड ऑफ इम्पैक्ट, राइट. एक अर्बन सेक्टर पे है, मेट्रोज वगैरह में ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, वहाँ पे काफी मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट हुई है एंड यू सीन डिमांड हैज स्लो डाउन. बट रूरल इकोनॉमी काफी अच्छी तरह से उभर के आई है इस पैंडेमिक में, और उसके लिए कारण एक तो गवर्नमेंट सपोर्ट था रूरल इकोनॉमी के लिए इन टर्म्स ऑफ एनआरईजी स्कीम्स. गवर्नमेंट ने भी रोल आउट्स किए थे फार्मर्स के लिए पैसे, और मॉनसून हैज बीन गुड, सो द क्रॉप प्रोडक्शन हैज बीन एट रिकॉर्ड लेवल एंड फार्म प्राइसेस हैव आल्सो बीन फेयरली गुड. सो रूरल इकोनॉमी के लिंक जो सेक्टर्स हैं जो सप्लाई करते हैं, वहाँ पे डिमांड हैज बीन फेयरली स्टिल ओके. सो मिक्स बैग है. अर्बन सेंटर्स में जो कर रहे हैं मेट्रोज, वहाँ पे अभी भी स्लो डाउन है. रिटेल सेक्टर भी इट्स स्टिल कमिंग अप, स्लोली लिंपिंग बैक. So overall, I think there is going to be a big impact, and India में I think the recovery in the businesses will be slightly slower because यहाँ पे जो stimulus इतनी बड़ी मात्रा में नहीं दिया है. काफी जो small businesses, SMEs हैं और small medium term, उनको भारी मात्रा में असर हुआ है. वहाँ liquidity government provide कर रही है through the NBFC channel, but इतनी तरह से नहीं वहाँ पे पहुँच रही है. So SME sectors में impact हुआ and this thing, और उसके कारण I think the recovery in India will be slightly lagging the global recovery. But I think overall longer term, I think India growth should come back to that 5 to 6% trajectory ऐसे हमको लग रहा है. Okay. रामदेव सर, दो चीजें, दो इंजन है. वन इज एग्रीकल्चर, अदर इज मैन्युफैक्चरिंग.
एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स करके अभी रूरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, दूसरा आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। क्या ये दो चीजें, ये दोनों फोकस, दोनों रिफॉर्म क्या इंडिया की ग्रोथ को रिवाइव कर सकते हैं? देखिए, जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है जहाँ पर करीब 2/3 ऑफ द पीपल आर लिविंग, सो आई थिंक दैट्स द बेस ऑफ द कंट्री आल्सो। तो वो तो डेफिनेटली अच्छा करेगा, वहां से जो भी डिमांड आ सकता है, लेकिन वो सिर्फ 1/3 ऑफ द जीडीपी होता है। 2/3 ऑफ जीडीपी कम्स फ्रॉम अर्बन सेक्टर, व्हिच इज I think yeah. ऑर्गेनाइज में काफी स्टिमुलस और देना पड़ेगा। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। आई थिंक थोड़ा ऑडियो आपका ड्रॉप हो रहा है सर। कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? Okay, so the real problem is the bulk of the economy, which is urban in character, and what kind of government incentive they do it from here. Because what I hear from the policymakers is that when the economy is in the slow mode or the sleeping mode, we don't want to vest the incentive, and they want to roll out the incentive, fiscal incentive. Monetary they have done, but fiscal incentive they want to do as the economy opens up. So I think we are going to see all the effort of whatever little firepower they have on fiscal side, that being rolled out in the next few weeks or months. That's what my understanding is, and it could be, it is, ये बहुत अलग है दुनिया से। दुनिया में सब लोगों ने फ्रंट लोडेड इंसेंटिव दिया है, जितना हो सकता है उतना उन्होंने फ्रंट लोड किया है, और बहुत पैसे छाप रहे हैं और उन्होंने प्रिंट किया है। बट इंडिया में ये बहुत कंजर्वेटिव ढंग से चल रहे हैं, और शायद हो सकता है ये सही तरीका हो कि आप जो पूरा का पूरा बैंड बाजा बारात जब इकोनॉमी ओपन अप होगा तो आप जो भी आपको बेनिफिट्स देना है वो आप देंगे, सो दैट आपको वी शेप में काफी एट अ रीजनेबल कॉस्ट। तो वो चीज जो है होना चाहिए, बट ये समय लगेगा, ये स्लो होगा बहुत। हालांकि बाजार एक अलग इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन रियल इकोनॉमी में लगता है कि काफी टाइम लगेगा। लेकिन नवनीत जी, ट्रीटमेंट और डोज देने की जरूरत कब है? जब पेशेंट बीमार है और आईसीयू में है तब, या कि जब ये ठीक हो जाएगा, चलने फिरने लगेगा, तब हम इसको डोज देंगे तो ये भागने लगेगा? कब ज्यादा ठीक है? आई थिंक दोनों चाहिए। जब पेशेंट बीमार है तब एक सर्टेन डोज चाहिए, और ठीक होने के बाद भी स्ट्रक्चरली वापस बीमारी नहीं हो और उसकी इम्यूनिटी बढ़े और आगे वो तेज भाग सके, तब भी चाहिए। तो अभी मेरे ख्याल में थोड़े से डिमांड स्टिमुलस की और ज़रूरत है, बिकॉज ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर में जो डिमांड है वो कम रहेगी। काफ़ी लोगों को, चाहे इंडिविजुअल्स है, अगर सैलरी इनकम कम है या बिजनेस इनकम कम है, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स भी अगर कम होगा। आज कॉर्पोरेट्स के नतीजे पिछले क्वार्टर के ठीक आए हैं एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में। क्यों ठीक आए हैं? बिकॉज कॉस्ट कंट्रोल बहुत ही एग्रेसिव था। लेकिन अगर जब कॉर्पोरेट्स कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, उनकी अर्निंग्स बढ़ जाती है, लेकिन किसी न किसी को इनकम कम हुई है। चाहे तो अगर उन्होंने सैलरीज कम करी तो वेजेस की इनकम कम हो गई, अगर उन्होंने अपने सप्लायर्स को कम पैसा दिया, अगर उन्होंने रेंटल कम किए, या उन्होंने अगर मीडिया स्पेंडिंग नहीं करी, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर उसका असर भी होता है। सो ये जरूरी है कि इस समय पर सरकार थोड़ा सा अगर और डिमांड स्टिमुलस दे तो उसका फायदा हो सकता है। जैसे प्रोग्राम्स होते हैं NREGA, अगर उसके जरिए हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप इमीडिएटली किसी की पॉकेट में पैसा जाए और वो स्पेंडिंग आए, और उसके सामने कैपिटल एसेट खड़ी होती रहे, जिसका लॉन्ग टर्म पर प्रोडक्टिविटी गेन पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। नरेंद्र सर, जब मार्केट पर है, बिजनेसेस वीक हैं, तो इसका मतलब ये तो जरूर है कि कहीं तो ओवर वैल्यूएशन भी होगा। कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स, कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे जिनको मार्केट वो वैल्यूएशन दे रहा है जो देना नहीं चाहिए। क्या आपको ऐसा कुछ सेंस मिल रहा है? See, one thing you have to remember is that interest rates क्या है? See, क्या है कि there is a pool of saving in India.
that pool of saving का interest rate अभी बहुत कम हो गया. That interest rate in India also, what is the interest rate you can get today in bank is much lower than before. So people are saying invest in equity. So today you have to remember what is this bull market. This bull market is a bull market which has been driven by the Federal Reserve of USA. So till the time interest rates start going up in USA and the US 10-year and the US 30-year starts going up, till that point of time you have created a situation where interest rate is zero. And when you keep interest rate too low, you are making equity attractive. So today, you go back 2 years back, in a fixed deposit with any bank, you are getting 8, 9, those kind of percentages. Today, you can't get 8, 9 in any bank. Today, you can get a home loan at 6.8%. Forget what I would say, invest in a fixed deposit. So I think, that valuation is higher today, maybe because of lower interest rates. And that is the reason for it. Now, what happens is, how long will US interest rates remain at zero? Can the US 30-year interest rate go up from here in the next 2 years? Suddenly because of inflation or something like that? That is the question which we'll have to ask. If at some point of time US interest rates start to go up, then this problem will come. Otherwise, it is a world where the equity market is driven up because of interest rate going lower rather than fundamentals or earnings or anything like that. That is how I look at it. And so that is why I think we cannot apply the principles of 2018. And even today, there are a lot of cheap stocks in the market, even at 11,500 today. And there are a lot of costly stocks, and the problem is coming out of this. I hope I've answered your question. Navneet sir, I think the volume, Mr. Singhvi, the line is little poor. Maybe you can explain your part, like how to go about as an investor, how we should look at investing. I think that is something which is more and more important. Should we get into what sort of equities or what sort of things as an investor, as an advisor, we all should look at, and then maybe all of us can answer. Sure. This is to whom? Navneet, please. Yeah. Sure. The question was on how to look at investing in this environment. So as everybody has explained earlier, that interest rates are Yeah. May I request Navneet ji please share his views on what asset classes one should focus on, and then maybe rest of the speakers can also share till the time Anil ji is there back. Sure.
Very quickly, so what this crisis has clearly highlighted is the importance of asset allocation, the importance. Yeah, I am of there if you can hear me or if you can see me. Yeah, Anilji. We cannot see you. Now we can see you. Yeah, Navneet, please answer that question, then I'll take it over. Yeah, please. Sure. So I was saying that this crisis has clearly highlighted the importance of asset allocation, the importance of constant rebalancing. The way markets have moved over the last few months, particularly has highlighted that we live in a world which is very unpredictable. We live in a world where things move very fast. I mean, in February, volatility was at an all-time low. In March, volatility at an all-time high. And now again, in last few months, as if nothing can go wrong. Things move very fast. And then you have overdose of information, which makes it very difficult for the investors how to segregate signal from the noise. And in this entire environment, one of the challenge for investor would be, if the world is so uncertain, then maybe, I mean, how do you hedge the tail risk? A tail risk is an event where there's a very small probability of that event happening, but there could be huge consequences. So for that, maybe you keep a higher amount of cash, or you keep some amount of gold in the portfolio. But the way central banks are behaving, they will ensure that you don't earn much on your bonds or on your liquid funds. Gold as it is doesn't earn you much because that's a non-earning asset class. It is good for diversification. And all of this will bring down the yield of the portfolio or the earning of the portfolio. Now in equities, again, because the bond yields are lower, prospective returns from equity are going to be lower because markets are discounting the equity because of the lower interest rate. With all of this, a very important aspect is that you keep a highly diversified portfolio and you constantly keep rebalancing because cycles are becoming shorter and shorter. A small amount in gold purely from a diversification perspective, not to make money from that part. And I would say that I think मेरे को ऐसा लग रहा है शायद कि because of the lower interest rate, नरेंद्र ने बताया EMI yields कम हो गए, लोगों को फिक्स इनकम में कम रिटर्न मिल रहे हैं, इक्विटी मार्केट ऊपर आ गया है, जेन्युइन डिमांड है और बिल्डर्स अगर प्राइसेस कम कर देंगे जो मेरे को लग रहा है कर देंगे, मेरे को लगता है दैट अभी रियल एस्टेट में भी शायद डिमांड आ सकती है. ओके रामदेव सर, जो नरेंद्र सर ने बोला है, जो नवनीत जी ने बोला है, वो ये है कि भाई 0% इंटरेस्ट रेट्स है दुनिया में और आपको सेंट्रल बैंक फिक्स इनकम में कमाने नहीं देंगे. बाकी एसेट क्लास में पैसा बनता है नहीं बनता है, लिक्विड कम है या फिर गोल्ड में लिक्विड है तो पैसा बनता है लिक्विड है. तो ये जो इक्विटी में पैसा आ रहा है वो मजबूरी का पैसा है या मजबूती वाला पैसा है? वाकई में लोग इक्विटी को अच्छा देख रहे हैं कि बिजनेसेस अच्छे हो जाएंगे, दुनिया सारी वापस बढ़िया हो जाएगी, अभी मत देखिए 5 साल देखिए, या अभी देखिए अभी और कहीं पैसा बनने वाला नहीं इसलिए इक्विटी में डाल दीजिए, और आप डाल रहे हैं इसलिए मैं भी डाल रहा हूँ, इसलिए नवनीत जी भी डाल रहे हैं, इसलिए महेश जी भी डाल रहे हैं, सब लोग पीछे लगे हैं. तो ये भेड़ चाल है या वाकई में कुछ सेंस है इस वक्त पैसा डालने का? अनिल, एक चीज मैं क्या समझा रहा हूँ कि सबसे बड़ा फ्यूटाइल चीज है वो टाइमिंग द मार्केट. मतलब जब मेरे को सबसे ज्यादा 23 तारीख को मेरे को, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, 23 तारीख को मेरे को सबसे ज्यादा मंदी लग रहा था. ठीक है, 23 मार्च को, तो दैट वाज द बॉटम ऑफ द मार्केट. तो वहां से मेरे को आज ही धुलाई पड़ी मेरे को बोर्ड मीटिंग में कि रामदेव तुमने कैसे सोचता था कि 23 तारीख को सब खत्म हो जाएगा और सब बैंक डूब जाएंगे, इस टाइप का मैं बात कर रहा था. तो फंडामेंटली यू कैन नॉट टाइम द मार्केट. एक बात तो और भी मैं हमेशा बोलता था, लेकिन इस बार तो एकदम प्रूव हो गया कि भाई वी कैन नॉट टाइम द मार्केट एटलीस्ट. एंड आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन टाइम द मार्केट. सब होशियार बने को जैसे भी, लेकिन क्या है कि आपको जो इन्वेस्ट, अच्छा सेकंड कि आप यू हैव टू स्टिक टू योर इन्वेस्टमेंट स्टाइल. भाई जैसे अभी क्या होता है कि हर बार आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल कायम नहीं करती. जैसे अभी बॉटम टू टॉप मान लो बाजार 40% 50% ऊपर है पर्टिकुलर सेगमेंट में, स्मॉल कैप इज अप 50%, लार्ज कैप इज अप 33-35%. शायद आपका पोर्टफोलियो उतना अच्छा ना किया हो बॉटम टू टॉप, बट ये समय ऐसा है कि टू स्टिक टू योर ओन इन्वेस्टमेंट फिलोसफी. क्योंकि यदि अभी आप बदले और मालूम पड़ा कि जैसे आप बदलेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल चलेगी. तो ये जो बाजार जो आपको जो दे रहा है चारों तरफ से, उससे बचना बहुत जरूरी है. तो यू हैव टू रिमेन वेरी पेशेंट एंड वेरी काम और अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल से चलें. और जो रिटेल का जो पार्टिसिपेशन, जो अभी जो ज्यादातर इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनल मैनेजर्स के बदले में
जो क्राउड जो है अमेरिका ऑल ओवर द वर्ल्ड सब के सब जो है खुद का डू इट योरसेल्फ, खुद अपना स्टॉक बाइंग कर रहे हैं और स्पेकुलेशन कर रहे हैं। तो मार्च से हुआ क्या है मार्च से आपका परफॉर्मेंस जो है, जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं उनके परफॉर्मेंस 1 साल 3 साल 5 साल के बेस में उतना अच्छा दिखता नहीं, क्योंकि इंडेक्स में भी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन जो मार्च में जिसने भी सट्टा चालू किया है, जो स्पेकुलेशन चालू किया है खुद के अकाउंट में, दे आर लुकिंग लाइक हीरो, दे हैव डन वेरी वेल। तो वो देख के लोग जो है बाजार में आ रहे हैं और ये 3 महीने का परफॉर्मेंस है। एक्चुअल में प्रोफेशनल मैनेजर का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा है, लेकिन जब प्रोफेशनल मैनेजर का परफॉर्मेंस देखते हैं वो 3 महीने का नहीं देखते, वो देखते हैं पूरे 1 साल का या 3 साल का, वो परफॉर्मेंस खराब है। तो उसी कारण से पीपल आर डिसअपॉइंटेड, दे डोंट वांट टू गिव मनी टू द प्रोफेशनल मैनेजर्स, और वो पैसा खुद अपना बाजार में लेके आते हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि वो बहुत अच्छा करें, लेकिन आप देखिए आखिरी में क्या होगा, जो स्पेकुलेशन करेंगे वो आखिरी में फंस जाएंगे। ये जो चाहे इंटरेस्ट रेट का साइकिल हो, चाहे फॉलोइंग द अमेरिका है, कोई न कोई कारण से वो जैसे आपको, जैसे मेरे को लगेगा, अभी तक मेरे को लग नहीं रहा है, जिस दिन मेरे को लगा कि अब हर तरफ से हरियाली है, उस दिन से बाजार गिरना चालू होता है। तो ये बाजार बहुत अनप्रेडिक्टेबल है एंड डेफिनेटली यू शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट आइदर साइड। एब्सोल्युटली। अच्छा महेश सर, चलिए मान लिया कि 0% इंटरेस्ट है और कोई आपके पास ऑप्शन बचे नहीं है, तो पैसा आपको इक्विटी में लगाना है, ठीक है, चलिए मान लिया वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी जल्दबाजी क्या है हाइपरफिश से जाने की? आप देखिए 23 मार्च के लो से आप लगभग 60% ऊपर आ चुके हैं निफ्टी पे, और ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ 10% नीचे बचे हैं लाइफ टाइम हाई से। सो ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, इक्विटी में पैसा डालते हैं, बट व्हाई सो गो बैक टू लाइफ टाइम हाई? सिर्फ इसलिए कि यूएस जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि नैस्डैक जा रहा है, S&P इसलिए हमें भी जाना है, क्या रीजनेबल? सॉरी, मार्केट में आई मीन लुकिंग एट दी करंट, अभी जो रियलिटी है उस तरह से देखेंगे तो मार्केट अभी यहाँ पे काफी आपको महंगा लगेगा। बट क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी मार्केट अभी क्या थोड़ा आगे का डिस्काउंट कर रहे हैं, राइट? इट्स लुकिंग बियॉन्ड दिस ईयर, नेक्स्ट 2-3 साल का। और यहाँ से भी अगर देखें ऐसी क्या होगा, पैंडेमिक की वजह से ये साल चला गया, राइट? 1 साल चला गया, थिंग्स विल नॉर्मलाइज। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 4th क्वार्टर में नॉर्मलाइज हो जाएंगे थिंग्स, इकोनॉमी विल कम बैक टू व्हाट इट वाज, सो यू विल कम बैक एंड थिंग्स शुड कम बैक टू नॉर्मल स्लोली। सो अगर हम लोग देखते हैं तो अपने को क्या अभी 1 साल 2 साल का अर्निंग देखोगे, 1 साल का तो बहुत ही मार्केट महंगा लगेगा। बट इफ यू लुक एट ऑन दी अदर पैरामीटर्स एंड अगर आप अज्यूम करते हो, अगेन ऐसे दिख भी रहा है कि काफी जगह पे थिंग्स विल नॉर्मलाइज, राइट, इन नेक्स्ट 3 months 6 months year down the line। तो यहाँ से भी मार्केट अगर अपन 3 साल का व्यू लेते हैं, हम लोगों ने मॉडल करके देखा है कि वेरियस पैरामीटर, प्राइस टू बुक वैल्यू, बिकॉज इन दिस एनवायरमेंट व्हेन अर्निंग्स हैज बीन डेसिमेटेड, आपको अर्निंग्स देख लेनी चाहिए, राइट? यू शुड लुक एट दी प्राइस टू बुक वैल्यू और अदर मल्टीपल। तो प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल मार्केट इज स्टिल नियर द लॉन्ग टर्म एवरेज से थोड़ा बल्कि नीचे ही है। तो यहाँ से भी अगर कोई 3 साल का व्यू लेता है मार्केट में, राइट, तो मार्केट में ठीक ठाक रिटर्न बन सकते हैं, ज्यादा रिटर्न नहीं बनेंगे, बट हमारे मॉडल के हिसाब से अराउंड 11-12% रिटर्न बन सकते हैं मार्केट यहाँ से। तो वो अगर नतीजा वो अगर ड्यूरेशन आप देखते हैं 3 साल का, देन यहाँ से भी मार्केट में आपको पैसे बनने चाहिए। अभी इन्वेस्टर क्या करे, अभी उसके लिए करेक्शन के लिए रुके, बिकॉज वो रुकते रुकते तो काफी टाइम के दिन ऐसा लग रहा था, 1 महीना पहले भी लग रहा था कि मार्केट करेक्ट होगा, आपको मौका मिलेगा, तो वो तो किसी को मालूम नहीं है। जैसे रामदेव जी ने बताया कि मार्केट टाइमिंग इज वेरी डिफिकल्ट। हमें भी लग रहा था कि मार्केट अभी 11,000 लेवल पे आ गया है, देयर विल बी अ करेक्शन एंड वी विल बाय इनटू दैट, बट होता नहीं है। सो आई थिंक क्लियरली यहाँ से इन्वेस्टर्स को इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो यहाँ से भी रिटर्न्स बनने की हमें काफी अच्छे रिटर्न्स दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म में करेक्शन हो सकती है एंड कुछ भी कारण हो सकता है, आई मीन इट विल हैपन वेरी फास्ट, और उसके लिए यू शुड नॉट गो एग्रेसिव। ये लेवल पे अभी एग्रेसिवली नहीं जाना चाहिए, और स्पेशली जो इन्वेस्टर्स डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफी पैसा जा रहा है अभी, क्या मार्केट में सब कुछ ऊपर आ रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, सो लॉट ऑफ पुअर क्वालिटी स्टॉक्स आर आल्सो गोइंग अप। और देखने को मिल रहा है कि ये मार्केट में अभी यहाँ से निकल के काफी कंपनीज में नजर आएंगी, स्मॉल कंपनीज और कंपनीज जिनकी बैलेंस शीट अच्छी नहीं है। ओके, सम ऑफ द कंपनीज विल एक्चुअली
struggle to survive. और यहाँ पे आप काफी जगह पे ये धोखा खा सकते हैं, राइट? डायरेक्टली कंपनी, स्पेशली ये स्मॉल कैप वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको काफी केयरफुल रहना चाहिए. बट काफी अच्छी कंपनीज हैं जो यहाँ से कंसोलिडेट होगी, ओके, मार्केट शेयर गेन करेगी और इनफैक्ट पैंडेमिक के बाद और स्ट्रॉन्गर ऊपर आ जाएगी. तो वो आई थिंक आपको लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ से अपॉर्चुनिटीज अभी भी है मार्केट में, इज व्हाट वी थिंक, एंड वन शुड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट. एंड इनफैक्ट इन आवर मॉडल, एसेट एलोकेशन मॉडल जो हम लोग देखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर यहाँ से भी वी आर स्लाइटली ओवरवेट ऑन इक्विटी कंपेयर्ड टू द लॉन्ग टर्म एवरेज इफ वी टेक अ 3-year व्यू. ओके, एक सवाल मतलब मैं पहले एक बैकग्राउंड देके पूछना चाहता हूँ, जो सारे इन्वेस्टर्स के लिए भी काम का है, सारे आईएफएस जो इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ में, जैसे हम टेलीकॉम सेक्टर में होते हैं आरपू देखते हैं कि किसी भी कंपनी ने उसके आरपू कितने हैं, वैसे हम लोग मीडिया में हम देखते हैं एटीएसवी, एवरेज टाइम स्पेंट बाय पर व्यूअर, एवरेज टाइम स्पेंट पर व्यूअर. और इस हफ्ते हमारे जी बिजनेस का एटीएसवी आया 30 मिनट्स, जो लाइफ टाइम हाई पर है. आज तक कभी हमने मतलब 15-16 मिनट आ गया तो हम ये समझते थे कि किसी एक व्यूअर ने एवरेज 15 मिनट चैनल देखा, मतलब बहुत बड़ी बात है. अब 30 मिनट. अब नवनीत जी, सवाल आपसे ही है, और ये सवाल सारे आईएफएस भी जानना चाहते हैं, मैं भी. ये मार्च के बाद अप्रैल से लेकर अगस्त तक हिंदुस्तान में इतने सारे नए अभिमन्यु पैदा हुए हैं जिन्होंने इस मार्केट की महाभारत में कदम रखा है बिना पूरी स्टोरी सुने हुए. अब आई एम श्योर आपके सारे सब लोगों के फंड्स में भी ढेर सारे नए इन्वेस्टर्स आए, इतने सारे अकाउंट डिपॉजिटरी में खुल रहे हैं, ब्रोकर्स के यहाँ खुल रहे हैं, रामदेव सर के यहाँ बहुत सारे खुल रहे हैं. ये अभिमन्यु जो अभी अभी उतरे हैं बिना पूरी कहानी सुनाए, इनका क्या होगा और इनको क्या करना है, इनके लिए समझाइए. और जो आईएफएस सुन रहे हैं वो अपने नए नए इन्वेस्टर को कैसे सिखाएं, कैसे समझाएं, वो भी बता दीजिए. सो रामदेव जी ने जैसा कहा कि भाई हमारी शुभकामनाएं सबके साथ, आशा करते हैं कि सब लोग पैसा कमा कर ही निकलेंगे. राइजिंग मार्केट में हमेशा ऐसा ही होता है. पहले भी साइकिल देखे हमने, 85 में ऐसा था, 92 में ऐसा था, 99 2000 में था, फरवरी मार्च में वो बबल बस्ट हो गया, 2007-8 में ऐसा था, 2016-17 में स्मॉल मिड कैप में ऐसा ही था कि आपको किसी ने भी कोई टिप बता दी और स्टॉक 25-50% चल जाएगा, 2-4% की एनएवी बढ़ती है महीने में, ऐसे फंड में क्यों पैसा लगाना है. पर इसका अंत अच्छा नहीं होता है, जैसा रामदेव जी ने और बाकी लोगों ने भी बताया. 2 तरीके होते हैं कि भाई बाजार में पैसा बनाने के, या तो आप टाइमिंग कर लीजिए या प्राइसिंग कर लीजिए. जो आप वैल्यूएशन के आधार पर खरीदेंगे, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू से कम लेकर के अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखेंगे तो लंबे समय में टिक पाएंगे. और अगर आप इसी हिसाब से खरीद रहे हैं कि कल मेरे से कोई ज्यादा पैसे में खरीद लेगा, तो वो जब तक आपको ऐसे कोई मिल रहे हैं तब तक तो ठीक है, जिस दिन नए लोग आने बंद हो जाएंगे उस दिन तकलीफ होगी. तो हमेशा एक बबल का सबसे क्लासिक साइन ये होता है कि जो मार्जिनल बायर है, he or she is not looking at the intrinsic value of the security. He or she is only looking at what the next person will pay them of that security. That's a classic sign of a bubble. अभी हम वहां पर नहीं पहुंचे इतने, पर अगर इस तरह से चलता रहा, रॉबिनहुड इफेक्ट कहिए या कुछ भी रिटेल मैनिया कहिए, फ्रेंजी कहिए, कुछ समय में वो बाजार में वो एक ऐसी स्थिति आ जाती है. जब तक कोई आगे आपको एक नया बायर हायर प्राइस पे मिल रहा है तब तक ठीक है. इसका मतलब है कि मार्केट में कुछ तो ऐसे पैसा कमाने से ज्यादा बचाना कब और कैसे. You're not clear, Anil. You're not clear, Anil. Narendra, hear me now. Just want to know, कहाँ पर आपको लगता है कि पैसा बचाना ज्यादा जरूरी है, कहाँ वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है, ये मेरा सवाल है जी. I clearly believe US equities is something which people have got very fancy interest in today. That is one area where I'm really worried. Suddenly now people want to invest in US equities. I think that trend is most worrying if you ask me. I mean, today to wake up and invest in US equity market, I think is not
I think that is the biggest risk, if you ask me, comes in US equity. If you ask me, other than that, if you ask me, all other areas are not as bad as US equities at this point of time. Clearly, if you ask me, growth and quality are much more expensive than value at this point of time. Value looks very cheap compared to growth and quality. That is very clear at this point of time. And the other area which I really worry at this point of time is people investing in the overnight fund, liquid fund. Because the liquid fund and overnight fund are now giving you 3%. And they are so scared about AA credit at this point of time that they invest in overnight fund and liquid fund. I'm not able to understand how they can, at this point of time, after all the credit events have played out, that now they are worried and investing in overnight fund and liquid fund. 3 years back, they wanted to invest in the highest yield to maturity fund. Today, they want to invest in the lowest yield to maturity fund. So that is something which I find again I would say overnight fund, which is the safest fund in the market at this point of time, is another area where I would be very careful about. I am very comfortable with AA funds of moderate duration at this point of time because there is huge margin of safety there. So that is a second area I would say. So I would say value across the spectrum, special situation across the spectrum. These are all areas. After the small and mid cap boom, I think small, mid and large all are equal at this point of time. But value is still much cheaper than growth and quality at this point of time. This is how I look at it. So, but people should not invest in overnight fund and say AA is very risky. I think the line got freezed again. Ramdev sir, can you just share some of the key points or success mantras like for investors and for IFAs at this point of time? See, these are really tough time to actually make money in a very predictable way because the environment is very unpredictable और बाजार का माहौल और भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है. तो आपका कनेक्ट जो है, जो बाजार में एक रैशनल होता है कि भाई इकोनॉमी अच्छी चल रही है और बाजार अच्छा चल रहा है, ये डिस्कनेक्ट बहुत ज़्यादा है. तो इस माहौल में जो है वो जितने आप डिसिप्लिन हेलो सो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन करें. जैसे नरेंद्र ने बोला कि US equity at 1.82 to GDP, US markets are most expensive in the world historically. तो ये बहुत रिस्की है. और उन्होंने जो ग्रोथ और क्वालिटी और ग्रोथ के एक्सपेंसिवनेस की बात है, हमारा तो स्टाइल ही क्वालिटी और ग्रोथ का है. तो नाउ द चैलेंज इज कि हम वो स्टाइल मेंटेन करें या वैल्यू की तरफ जाएं. तो मैं तो सिर्फ क्वालिटी और ग्रोथ ही जानता हूँ. So we will definitely maintain our style, and maybe the return will be little lower or it will be challenging. लेकिन ये मतलब मेरा firm belief है कि in the longer run equities में आप अपना style ना बदलें. Otherwise आप ना तो यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे. So यदि आप growth investor हैं, आप growth में रहे और value बनाएंगे तो आप आखिर गलत टाइम में आप value investor बनेंगे. तो वो ये जो दोनों style जो एक mindset होता है वो बदलने का बहुत मुश्किल होता है. सो बट ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प है कि ये जो चैलेंज है, तो मेरे ख्याल से एज अ एडवाइजर मेरे ख्याल से आप लोग को बैलेंस करना जरूरी है बिटवीन ग्रोथ एंड वैल्यू. कुछ अच्छे ग्रोथ मैनेजर पकड़े आप और कुछ अच्छे वैल्यू मैनेजर मैनेज, और इक्विटी के अंदर में उस ढंग से आपको क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो बनाने पड़ेंगे. लेकिन होगा क्या कि एक पर्टिकुलर स्टाइल आउट ऑफ फैशन रहेगा.
जैसे अभी वैल्यू बहुत ज्यादा आउट ऑफ फैशन है, 12-13 साल में ग्रोथ हैज आउट परफॉर्म वैल्यू बाय बिग मार्जिन। और हो सकता है कि ये ऐसा कोई समय हो कि भाई यहाँ से टर्निंग पॉइंट आएगा, लेकिन हो सकता है कि 4-6 महीने के और पेन बाकी हो इन वैल्यू। तो ये जो बाजार का जो एक ये है तमाशा कि भाई जब आप लार्ज कैप में जाते हैं तो मिड कैप चलता है, मिड कैप में जाते हैं लार्ज कैप चलता है, अमेरिका में जाते हैं तो इंडिया चलता है, इंडिया में जाते हैं तो अमेरिका चलता है। तो ये बाजार आपको हर तरीके से टेस्ट करेगा जहां से आपको भगाने के लिए, लेकिन आप वहां डटे रहे, आपको जो समझ में आता है वो करें, आपका जो स्टाइल है उससे लगे रहें। और ये बहुत चैलेंजिंग टाइम है, और वो भी पब्लिक मनी के साथ में। मतलब महेश, नवनीत, नरेन, ये सब पुराने दिग्गज हैं पब्लिक मनी मैनेज करने में। मेरे लिए तो 5-7 साल से मैं मैनेज कर रहा हूँ, बट पब्लिक मनी मैनेज करना विद दिस काइंड ऑफ, क्योंकि मैं अपने आप को समझा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने इन्वेस्टर को समझाऊं ये बहुत डिफिकल्ट है। एब्सोल्युटली, उनको जवाब देना बहुत भारी काम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये चीज में एक्सपीरियंस और स्पेशली जी नवनीत जी, मैं बोल रहा हूँ अनिल जी रोज करते हैं वो। रोज फेस भी करना है, और रोज जब आप लोग आए तो आपसे पूछना भी है। आइए, रामदेव सर को 5 बजे निकलना है, तो मैं ना एक छोटा सा पोल जल्दी से करवा लेता हूँ पहले कि अब पैसा कहाँ लगाना है, थोड़ा ये समझ लें। क्योंकि इक्विटी में भी देखिए तेजी तो का माहौल है ही है, डेट अब यहाँ से और नीचे क्या जाएगा, ठीक ही होगा शायद। गोल्ड में सब लोग तेजी बोल रहे हैं, गोल्ड सिल्वर में, वो प्रॉपर्टी चला नहीं तो हो सकता है वहां भी पैसा बन जाए। तो 4 ऑप्शन है। रामदेव सर, चूंकि आपको पहले जाना है तो शुरुआत आप ही के साथ करता हूँ। ये ऑर्डर में सबसे पहले क्या रखना है, इक्विटी, गोल्ड, फिक्स इनकम और प्रॉपर्टी, इन चारों को कैसे रैंक करेंगे आप इन्वेस्ट करने के लिए आज से? 1 to 4 only equities. Only equities. 1, 2, 3, 4 only equities because only equities. क्योंकि that is what I understand. So मैं तो दूसरा कुछ खरीदूंगा नहीं। मेरे को यदि रियल एस्टेट भी खरीदना तो मैं जाकर रियल एस्टेट कंपनी की इक्विटी खरीदूंगा, DLF या जो भी समझ में आता है उस टाइप का कुछ खरीदूंगा। इसमें शायद ज्यादा पैसे बनेंगे rather than कहीं पर जाके प्लॉट खरीदेंगे या कहीं पर फ्लैट खरीदेंगे। उससे अच्छा है कि DLF के शेयर ही खरीद लो। तो या गोल्ड खरीदना हो तो मैं जाके गोल्ड में कुछ खरीद लूंगा, कोई कंपनी खरीद लूंगा, इस टाइप का। सो मेरे को इक्विटी आती है, मैं आई विल डू व्हाट आई अंडरस्टैंड, आई विल नॉट डू एनीथिंग न्यू। मैं तो काम करने वाला नहीं पक्का। सो 35 साल में ऐसे पैसे बने हैं और अगले 35 साल में भी ऐसे पैसे बनेंगे। क्या बात है, वंडरफुल, वेरी नाइस। और ये कॉन्फिडेंस ही है जो आप मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी के नाम में सिर्फ मोतीलाल ओसवाल टावर, कभी आपको ऐसा मन आया ये पिछले जब ये मार्च में इतना फॉल आया तो कि एक बार क्यों ना मोतीलाल ओसवाल टावर भी बेच के इक्विटी मार्केट में पैसा लगा ले? नहीं, वो हेडक्वार्टर है, वो पिंड है। एब्सोल्युटली। नरेन सर, आपसे भी सवाल यही है, ऑल दिस क्लासेस कैसे रैंक करेंगे आप? Anil, can I leave? Yeah, please sir, please go ahead sir. Yeah, sure. Thank you so much, Okay. Ramdev sir. Thank you so much. I'll say asset allocation, Anil. This year has been such a brilliant experience. If you look at it, in the month of March, we got the opportunity to put 8,000 crore in equity in our asset allocation-oriented funds. And it would have been impossible to collect 8,000 crores in equity that month from all the investors. So, and you know, times like today, look at it slowly, again we are selling, because again you can see that the market is just going up every day. And so I will say it will be asset allocation, and asset allocation. And so I think there will be an opportunity when US equity market falls 20%. At that point of time, I will change my mind and give a big buy call on equity. That is what I think. And when that happens, when will it happen? I don't know. Maybe 1 year, 20% from now. Yes. Interesting. It fell already. Okay. Out of the 20, already 6 has happened in the last 2 days. As you know, it has happened. 6 has already happened. So I'm talking of another only 14-15% more. Many people will bless you, sir. बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी बस मिस हुई है, वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैं आपसे एसेट्स पे पूछूं, कौन सी आपको पसंद है नवनीत जी, उससे पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ।
जो अभी नरेंद्र सर कह रहे थे कि इतने खराब महीने में भी बहुत पैसा आया. So as a fund manager, how do you want to rate the performance in क्या परफॉर्मेंस वो जितने फंड्स आ रहे हैं इनफ्लो उसके बेसिस पे होनी चाहिए या जो रिटर्न्स जनरेट किए उसके बेसिस पे होनी चाहिए? फंड मैनेजर से इस वक्त क्या पसंद करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो हम एक ही देखते हैं, इन्वेस्टर्स के गोल मीट हो पा रहे हैं कि नहीं, एडवाइजर्स को हम बराबर सर्व कर पा रहे हैं कि नहीं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और लंबे समय तक अगर वो करते रहो तो असेट्स अपने आप आती रहती है. Absolutely, and that is the faith and comfort Indian investors have shown in mutual funds in last few years. I'm sure that you guys are doing such a wonderful job. और मैं कई बार IFAs की कॉन्फ्रेंसेस में गया हूँ और मैंने वहाँ एड्रेस भी किया. मैं खुद दिन रात इतना इक्विटी मार्केट्स को ट्रैक करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, उसके बावजूद मेरे सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड के थ्रू है. और यहाँ पे जो हमारे चारों फंड मैनेजर बैठे हैं, चारों के फंड्स में मैंने भर के पैसा लगाया है. एब्सोल्युटली स्टनिंग परफॉर्मेंस, एंड आई कैन अश्योर यू दोस पीपल हु फील दैट अनिल सिंह इज गुड एनालिस्ट और रोज सुबह मार्केट बताता है ये बताता है, बट आई एम टेलिंग यू दीस फोर गाइज आर मच बेटर देन मी एंड दे आर मेकिंग मनी फॉर मी. सो आई एम श्योर दे विल मेक मनी फॉर यू ऑल्सो. बट अभी नवनीत जी आप ये बताइए कि आप कहाँ देख रहे हैं, कहाँ पैसा बनेगा? चारों को रैंक करिए. हमारा एक मल्टी, जैसा नरेंद्र ने बोला, वो एसेट एलोकेशन, तो हमारा एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है. उसमें गोल्ड भी है, इक्विटी भी है, डेट भी है, तो आपको सारा एक्सपोजर वो एक ही फंड में मिल जाता है. बट ऑन अ मोर सीरियस नोट, आई थिंक अगर नेक्स्ट 10 साल देखेंगे तो लास्ट 10 साल इक्विटी ने अंडर परफॉर्म किया है. लॉजिकली नेक्स्ट 10 years इक्विटी शुड आउट परफॉर्म. In the very near term, I think market volatility is going to be much higher than what we have seen in last 2-3 months. Starting with the US markets, and all markets in the world are linked with that market. We are going to see a lot of volatility in the very near term. Markets have run up quite a bit. On the fixed income side, I think there is very limited downside in interest rates. I agree that there could be some potential on the credit side. That has become a bad word. Investors are not looking at credit risk fund. But if you look at the portfolios and you look at the current yield, the difference between liquid fund or a, let's say, a low duration fund versus a credit risk fund, you are getting compensated very well. So in fact, that is also an asset class one should look at. Gold only from a small diversification perspective. If something goes wrong in the world, whether geopolitical risk or whether central banks keep printing so much of money and people lose faith in the currencies, in that case, gold can go up very sharply even from here. But you should be happy if gold loses money in your portfolio, because in that case, rest of your portfolio would be doing better. Okay, perfect. Mahesh sir, what is your opinion about all these asset classes? So I think, I mean, one is, see, clearly, I mean, equity or fixed income are two large asset classes जहाँ पे पैसा है. तो हम लोग का व्यू है कि डेट में इंटरेस्ट रेट्स विल रिमेन लो, ग्लोबली तो रहेंगे बट इंडिया में भी लो रहेंगे, और यहाँ से ज्यादा नीचे कट्स नहीं होंगे, राइट? सो इफ एट ऑल रेट्स गो अप, आपको ड्यूरेशन फंड, बॉन्ड फंड में पैसा इतना ज्यादा देगा नहीं, बिकॉज़ देयर इज कैपिटल लॉस. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, हालांकि अभी नियर टर्म इक्विटी माइट लुक अ बिट एक्सपेंसिव, ओके, थोड़ी करेक्शन भी हो सकती है. जैसे नरेंद्र ने बताया कि यू कुड सी अ 10% करेक्शन, 10-15% इज क्वाइट पॉसिबल. बट अगर 3 साल का व्यू लेते, देयर इज नो डाउट, okay, that equity will be on top, right? As I said, we still see around 11-12% return, which is a very good return to earn in an environment जहाँ पे आप देखोगे कि inflation will remain fairly benign going forward, okay, interest rates will remain low, so आपको enough risk premium मिलेगा equity में to justify the volatility in equity. So equities will remain on top, and I would say that after that, and you can choose between the gold, okay, more defensive. I think it's had a very good run in the last 1 year. It could still do okay-ish kind of a thing, nothing too great. And real estate, I think real estate also has gone through a very bad cycle, right? Last 5 साल में real estate prices have been at levels which is more or less flattish. Income levels are now going up, so the affordability and the gap is now coming down. And with interest rates also, mortgage rates now at around 7%, you could see the real estate sector starting to go up, though I don't think appreciation will not be that much. But anybody wants to buy a house, okay, to live, agar kisi ko lena hai, this is the best time to buy real estate. So you should not hesitate and put money. You can take a loan, whatever, but this is a good time to buy real estate if you want to use it as a consumption. Investments, I don't know. So I would say equities will be on top. Then you can choose between, we are agnostic across whether it is real estate, gold, or fixed income.
Okay. Before I conclude, I have one more question to ask. लेकिन उससे पहले कनक जी को एक पोल लेना है, तो कनक जी पहले आप एक पोल दे दें, उसके बाद एक सवाल मुझे और हमारे एक्सपर्ट से सबसे पूछना है. तो पहले over to you कनक जी. Friends, this is the poll in front of you. I'll request all of you to just participate and let's see what is the view. Is the poll coming on the screen? Yeah, please. Is what does pandemic mean to all of you? And the 5 options which we have given is health crisis, disaster, learnings, we all were not prepared, and any other reason. So let's see out of, so far I think 71% of the people are telling it's learning. That's good. And based on this, no, you can just sum up the whole thing. Kanak ji, if at all we learn from something, then it's not a crisis, it's an opportunity. So I'm sure on the Teachers' Day, if more than 70% of our participants are almost 70% of the people have participated. And yes, it's a learning. Then we are certainly, I mean, you know, we gained something out of even this pandemic also. Okay, now when the life will be back to normal, life means business, life means industry, life means economy. Markets are back to normal in a hurry, but when the life will be back to normal, कब businesses ढंग से शुरू होंगे, कब economic growth फिर से हम 6%, 7%, 8% की range में देखेंगे. This is my concluding question, and I want an answer from all of you. Naren sir, please start. Because of base effect, actually it will do very well next year. But life will be normal in 2022. But due to base effect next year, if you do analysis for April to June quarter, I think growth will be phenomenal next year, April to June quarter, year on year. But that doesn't mean that next year will be normal. Next year maybe we'll have 25% growth. But I believe that 2022 January or so, things will be perfectly normal, but you will have extraordinary growth next year. But that extraordinary growth should be measured after looking at the negative growth of this year. So my view is that you will have extraordinary growth in 2021, but life will be completely normal in 2022 January. Okay, so 1.5 year, we still have to, you know, struggle with extraordinary growth will not be in 22. Extraordinary growth will be in 21. 20. Okay. In terms of numbers, it 21 would look much better. But back to normal pre-COVID levels probably in 22. Okay, got your answer, sir. Navneet ji. So for anything, I would say GDP, IIP, CPI, earnings growth, P ratio, don't look at the average. Average will kind of confuse you a lot more because there are internals which are more important. For example, on the GDP growth, I have a view it is not going to be L-shaped, U-shaped, V-shaped, W-shaped, whatever. It will be K-shaped. There will be few things that will do extremely well and there are few things which will go down substantially because there are so many structural changes that are happening. So if you try to look at an average, which may completely distort the entire picture. So don't look at averages on anything going forward. Look at what is there inside that. It's like you put a human being in a half in microwave oven and half in refrigerator. The average temperature will be same, but I mean the person is gone. The same thing is about every economic data you have to see for next few quarters, few years. Challenging time ahead. That's what I understood from you, sir. Mahesh ji, please. No, I think as I would agree with Navneet, I think there will be various parts of the economy, you know, which will recover in different phases, right? जैसे हमने देखा है, for example, auto का ही देखते हैं, right? Sector, just to give an example. Probably auto two-wheeler demand will come back to pre-COVID level in the next, say, couple of quarters itself, right? By December quarter itself, I think you should see it coming in volume terms, okay, compared to what it was just pre-COVID. That doesn't mean that it will continue to grow at a fast pace, but at least coming back to those levels. I think if you look at commercial vehicles, for example, in the same auto sector, right? वहाँ पे आपको demand अगर आनी है वापस, okay, to that levels which was there say, around a year back, उसको शायद 2 साल लग सकते हैं. It might be in 2022 or so.
So I think that divergence आपको दिखेगी हर एक सेक्टर में, you'll see that variation, okay, will be there. But I think by and large, I think if you look at the macro, I mean GDP as an aggregate, if you look at the average number, then I think you should come back to the pre-COVID activity level. I'm just saying, right? I'm not saying growth over that. I think that should come back somewhere in the end of this fiscal year, fourth quarter itself. Overall, I think GDP activity-wise, okay, we should be our first quarter of next fiscal year, it should be there. And then from there, to what extent it grows, it all depends, okay, in terms of what kind of a stimulus, okay, we've got, okay, what kind of a foundation, okay, we have set for else as a country really to set a launch pad, okay, to take us forward. But I think in India, I think we should still be okay. I think our growth recovery will be slightly slower, and US or the, if you look at the indicators, they are showing almost a tad below the pre-COVID levels, the PMI indicators. Some of it is pent-up demand. But I think I'm fairly confident that I think you should see our trendline growth. India's, okay, what we saw in, I think FY19 is a good indicator. I think 20 was still depressed because fourth quarter was down. I think that trendline growth should come back in FY22. I think we should be again back on track. Certainly. Okay. Before I conclude the program, last one thing, Navneet ji, for me and for many IFS who are attending this program, how on day-to-day basis, like me, how I should face my viewers about markets and their investments, how these IFLs should convince and advise their investors or customers about their investments. I think history clearly shows that, I mean, every time there are dark clouds, they are always followed by a shining sun. This time won't be any different. We used to discuss in the March and April when there was a complete gloom and doom. There was so much of uncertainty. But just look at it in the within 3 or 4 months, I mean, markets have run up 50%. And you go back in a longer term history, in fact, every time there has been a big crisis that humanity had to handle, a bigger technological advancements, bigger technological innovations, better way of doing things, higher productivity has always followed that. And at this point in time, the biggest importance for every investor, in all my investor meets, I say this, the importance of advisor has gone up very substantially because the world is so fragile, world is so uncertain, things are moving so fast. There is a barrage of information you get, which also confuses you a lot more. That time, the importance of a good advice is very, very critical. Absolutely. So you are a backbone to investing community, and I'm sure जो हमारे सारे IFS हैं पूरे देश भर में, they are doing wonderful job. FFF, you are doing a wonderful job. 21 हफ्तों की ये जो प्रोफेशनल इवोल्यूशन की जो जर्नी आपने स्टार्ट की है, आई एम श्योर इट इज वेरी टाइमली और ये बहुत जरूरत वाली है इस वक्त जब पूरे देश में इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हैं, आईएफएस कुछ हद तक कंफ्यूज हैं और उन्हें ये सही राह दिखाने में बहुत मदद करेगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी, नरेंद्र सर और साथ ही महेश जी, आप सबका धन्यवाद इस खास शो के लिए अपना समय देने के लिए। और वीकेंड आई एम श्योर you have taken some time out from your family time और आप सब IFS का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस सिंपल लर्निंग यही है पूरे इस डिस्कशन से कि इन्वेस्टेड रहिए, मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें, वॉलेटिलिटी रहेगी, फिर से मौके मिलेंगे और उन मौकों को चूकना नहीं है, बस लपक लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और एक बार फिर से आप सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहें, सीखते रहें, बस सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद आप सबका। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. So this is a small certificate where all the 27 associations logo is there. So it's a combined effect, combined support. So thank you very much, gentlemen. So friends, before we end, there is another poll which is there coming in front of you right now. Please answer that so that we can just, this is there in front of you. Please look at the poll. The poll is: asset allocation is important for youth, retired people, working professionals, or all of the above?
Okay, I think the percentage is obvious. It's nice to see that all of us are answering. Okay, and the letter for this particular question is L. Okay, so all those people who have a letter L in their name, so this is going to, you can scratch off that. First letter was A, second letter is L. Okay, so now I just end the poll and let's see the results. Okay, so almost 98% of you are telling all of the above asset allocation is required, and I think that is an amazing answer. So coming back to the last question for the day, and just hold on, this is very, very important, and this is related to the gold. Okay, so the question is, what is the asset allocation you suggest for the gold in the portfolio now, from now, whether it should be there or not? If it is, then what it is? And the letter for gold is none other than G. So, okay, so for today we have 3 letters, A, L, G. Okay, so all those names, and I will share with you how things will move around. Okay, almost 77–80% of people have voted. Some more if you can. Okay, let's end the poll. And this is the result. This is interesting, my dear friends. 10% of us think that, 53% of us think that 10% of the portfolio should be in equity, in gold. And something 15% of gold exposure, something 5%, and only 2% of us think that it should be 25% and above. Let's see, time will tell where it is and what it is all about. So that's all about the poll. Friends, next thing which we will be having is our own program, which is next time is on Friday, and we'll request all of you to be there, and we will be sharing the details and the communications about that very, very soon. And just to share with you, see that on the screen right now, which is there. If you all can see the screen. Sharing the screen with you all. Yeah. So this is a particular 21-week program. In each program, we will have 2 to 3 questions which will be shared with all of you, and please do answer. And this should be like the name which is there, your existing names, and based on that we will have a Hindu Business Line is going to gift those people who will be lucky winners a e-newspaper subscription, and also some books which is written by some of our authors in our industry. So this is there. So this is something quick 5 for the first people who call off the 5 letters in their name. They will be the Jaldi 5. You will have to put, and you will have to share it in the Telegram group. I think almost all of you are, most of you are there in the Telegram group, but the email which you have received, please ensure that you are also a part of the Telegram group. Completion of the first name, middle name, surname. So it's good to have middle name, and it's bad also to have a middle name, because that will make your name bigger. And then the full name obviously is there. So this is how the whole thing will work. And finally, we thank all the associations who have been a part and who have been supporting this whole initiative. And special thanks to all the members who are present today, and we really look forward that we will be taking this journey in the coming days. And this is the first time that 27
organizations together are actually recognizing the speakers. So this is all what is there to Mr. Ramdev Agarwal, Naren ji, and all of them. So thank you so much, all of you, for your presence and for your time. And I'm sure all of you have enjoyed. Look forward to see you on 11th of September, which is at 5 o'clock. And rest, it will be all Saturday at 4 o'clock. Thank you very much. And a special thanks to the Tattva team for conducting the whole session, the flyers, the videos, and everything, whatever has been done has been a big contribution by the team Tattva. And we also have someone very special. I'll just unmute him and request him to just share. So can we have Mr. Yeah, it is there. And yeah. Yes, Kanakji, am I audible? Anirudh to share a little thing about the RVCC initiative, which is again starting on Monday. Yeah, I think one of the very interesting session which we all had, and I'm sure each one of you have enjoyed the session, and it was quite frank and free. Now, one thing which was common in the session, एकदम सभी लोग एक ही चीज बोले हैं कि volatility is going to be there. तो and volatility अच्छा है, we have to brace volatility. Now, for that bracing of volatility, there is a course which is run by SSL, and it's also the course is accredited by NSE Academy Limited. So, Rebalance Volatility Certification Course, RVCC. So, we are associated with that particular course, and we want that each of you should go through this particular course format. Your RM will help you. There is a subsidized cost also to go through that particular course. My only suggestion is, आज अच्छा लगा देख के कि सब लोग लिखे हैं कि pandemic का time में what actually thing has happened is learning. I think learning is the only thing जो कभी कोई ले नहीं पाएगा, वो आपका ही है. So this is again a learning initiative which I think ICICI Pru will be happy to have that particular process, particular journey. So my request will be, if you have not undergone RVCC certification course, please go through it. Please connect with your ICICI Pru relationship manager. He will guide you. We are going to start this RVCC code. At least this will help you to brace volatility. उसके बाद volatility आपको अच्छा लगेगा, खराब नहीं लगेगा, and your investors will be happy with volatility. The more the volatility, they will be much more happier. So that's from my end. Over to you, Kanakji. Thank you so much, Anirudh, for joining and sharing your views. Thank you so much. With this, we come to the end of the session. And special thanks to everyone. Business Line for next 21 weeks, each and everything will be taken care, and it will be on their what I will say on the media as far as Business Line is concerned. So special thanks to Business Line, special thanks to all the 27 IFA associations all across India, and I will not say thanks to volatility coaches, because it is volatility coaches who are actually taking the whole concept, taking it further. And in the coming days, we will have amazing speakers and amazing content which will be shared. Look forward to see you on next Friday, which is 11th at 5 o'clock. Thank you so much.